A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed the very important chapter of your syllabus, that is in preparation of final account or financial statement of sole proprietor, which include the three basic statement, two basic statement, that is an income statement and position statement. In the income statement, we will prepare the two account, trading account and profit and loss account, whereas in the positional statement, we prepare the balance sheet with the given information. As well as we discussed a lots of adjustment which are required to adjust the preparation of the, at the time of the preparation of the final account of sole proprietorship. That is in closing stock, outstanding expense, prepaid expense, closing stock, interest on capital, interest on drawing, goods withdrawn for personal use, goods distributed as free sample, manager's commission, as well as the very important and very complex topic of this chapter, that is an goods and service tax on adjustment item. So after discussing this chapter, you know very well in the upcoming 21st December 2020, your UT2 exam of class 11th accountancy will be held. So for your examination purpose, let's we discuss some of the important short answer type question related to the final account. Basically, such question is based on the various formulas, as well as this question is basically based on the adjustment which we discussed already in the last video. So without creating any delay, let's we discuss the various short answer type questions related to the final account without adjustment as well as with adjustment. So if we are talking about the first question, and this question is very popular and very easy question, that is in net sales during the year 2011, 3 lakh, gross profit is 25% on sales, find out cost of goods sold. क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट सेल्स 3 लाख हो. क्वेश्चन नंबर 1, अगर नेट सेल्स 3 लाख रुपीस हो एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताया. आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है. So how will you calculate the gross profit from the above information? As you clearly see that gross profit is 25% on sales. तो क्या हम gross profit calculate कर सकते हैं? Yes sir. 3 लाख का 25%. Okay, and the gross profit will be a 75,000. तो gross profit पता है, sales पता है, तो formula क्या होता है cost of goods sold का? The formula of cost of goods sold is sales minus gross profit, and the sales of this question is 3 lakh and gross profit will be a 75,000. So your cost of goods sold will be a 2 lakh 20. Okay. Similarly, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, क्वेश्चन इज ट्विस्टिंग अबाउट इट कि नेट सेल्स इज रुपीज 9 lakh and question is talking about the gross profit 25% on cost of goods sold या फिर cost. तो यहां पर आप थोड़ा से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां तो कॉस्ट गिवन नहीं है. कॉस्ट गिवन नहीं है तो हम कैसे इसका आंसर निकालें, कैसे हम फाइंड आउट करें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट कॉस्ट इक्वल्स टू 100. आपने कॉस्ट एज्यूम किया 100, तो जीपी कितना बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट. सो योर जीपी विल बी 100 का 25%. सो 100 का 25% विल बी 25, एंड यू नो वेरी वेल cost of goods sold equals to sales minus GP. So sales equals to what? Sales equals to cost of goods sold plus GP.
यानी जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी को ऐड कर दे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे सेल्स. So according to this expression, you can see that sales is 1 lakh 25, 125, and according to this is 9 lakh. तो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है कि if sales is 1 lakh 25,000 is equivalent to the 9 lakh. याद है? तो अगर सेल्स एक होती तो क्या करते? 9 लाख डिवाइडेड बाय 125. और आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट. सो क्या कर आपको क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था कॉस्ट. और इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितने के इक्विवेलेंट है? 100 के. तो इस एक्सप्रेशन में अगर कॉस्ट 100 होता, सो अगर कॉस्ट 100 होता तो वैल्यू क्या होती? 9 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100. सो बेसिकली इसी को हम लोग क्या करते हैं? एक फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. मतलब कि जो वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड करो और जो वैल्यू आप चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो. फिर से मेरी बात समझना कि कौन सी वैल्यू गिवन है? 9 लाख. सो 9 लाख को आप डिवाइड कर दो जो वैल्यू गिवन है. आपने क्या किया? 9 लाख की सेल्स को 125 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया जो कि वैल्यू गिवन है. तीनों में से क्या वैल्यू गिवन है? 120. तो 9 लाख को 125 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. और हमें चाहिए क्या? कॉस्ट. 100 से मल्टीप्लाई. ये सबसे इजी तरीका है. तो वी फाइंड आउट ओके. जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो वी फाइंड आउट बिकॉज 25 द 24 5 4 द 100 एंड 25 5 द 125. सो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 द 5 4 बचेगा. 5 8 द 40 1,80,000 multiplied by 4. So your cost will be a 7,20,000. So your cost will be a 7,20,000. ये आपका क्या आया? कॉस्ट. और अगर क्वेश्चन में कहा होता कि आप जीपी भी निकालो तो जीपी तो अब निकल जाता है. जीपी दो तरीके से निकल जाता. देखो एक तरीका है कि सेल्स पता है, कॉस्ट पता है, माइनस कर दो. 9 लाख में से 720 माइनस करोगे तो जीपी कितना आएगा? 1,80,000. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप चाहो तो जीपी 25% ऑन कॉस्ट है तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो? ये मैंने क्या किया? सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दिया है. दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस्ट का 25% निकालो. कॉस्ट का 25%, कॉस्ट कितनी है? 7,20,000. उसका 25% निकालो. 1,80,000. देखो कितने तरीके बन रहे हैं. एक ही क्वेश्चन है लेकिन लागत निकालने के तरीके अलग अलग है, फाइंड आउट करने के तरीके अलग अलग है. सो इट टोटली डिपेंड ऑन मी कि हम किस तरह के तरीके को फाइंड आउट करना चाहते हैं. तीसरा तरीका भी है. हाँ, इसको मैंने क्या किया? कौन सा तरीका लिया है? कॉस्ट इंटू 25% निकाल लिया. तीसरा तरीका क्या है? एक और तरीका है. जैसे आपने कॉस्ट निकाला है वैसे आप जीपी भी निकाल सकते हो. कैसे? जीपी आपकी कितनी इसमें जीपी कितनी है? 25. सेल्स कितना है? 125. तो 9 लाख को डिवाइड करो. तीसरा तरीका क्या है? 9 लाख को डिवाइड करो 125 से और आपको चाहिए क्या? 25. तो भी आएगा आपका 180 क्योंकि जीपी यहां पर कितना है? 20. तो हर तरह से अगर आप देखो इस क्वेश्चन में तो आप कई तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके. तो आई होप ये जो डाउट आपके मन में चल रहा था इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर वो क्लियर हुआ होगा. और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जो जनरली आपको ट्रबल क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रिलेट करता है एडजस्टमेंट से. जैसे कि क्वेश्चन बहुत ही क्लियर दिया हुआ है यहाँ पर. मैं क्वेश्चन को पहले समराइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब स्पेस की जरूरत होगी.
So the question is, a new firm commenced business on 1st January. Question number is, a new firm commenced business on 1st January 2016 and purchased the goods costing 90,000. परचेस कितना किया आपने? 90,000 rupees का. During the year, a sum of 6,000 was spent on freight inward. Freight inward पे खर्च किया. So आपका freight हो गया कितना? 6,000. Third information, at the end of the year, the cost of goods still unsold was 15,000. यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रहा है कितना? 15,000 एंड ब्रैकेट में दिया है रियलाइजेबल वैल्यू. कितना दिया है? रियलाइजेबल वैल्यू 12,000. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000. Okay, and you have to find out the gross profit of this question. So this question is basically depend on the cost concept. और cost concept में आपने क्या पढ़ा है? Cost concept में हमने पढ़ा है कि closing stock is valued. याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि according to cost concept of accounting हमने पढ़ा था कि closing stock is valued cost price or realizable value whichever is less. दोनों में से जो कम हो. और ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं कहता, ये आपका प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट भी कहता है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, जब आप उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा ना हो. रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है, इग्नोर इट. बट अगर कम है तो उस पर आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको तब कम वैल्यू को ध्यान में रखना है. तो अगर जब हम आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक. इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बिजनेस नया नया ओपन किया गया है, प्लस नेट परचेज गिवन है क्वेश्चन में, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो है कैरेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की जब हम वैल्यू लेंगे तो दोनों में से जो कम होगी वो लेंगे. तो 15,000 एंड 12,000 में से दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? यस, 12,000. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया जाएगा यहाँ पे? 12,000. सो ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, नेट परचेज इज 90,000, direct expense is 6,000 and closing stock is 12,000, not a 15,000. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 96 में से 12 गया तो कितना बचा? ये बचा 84,000. बिकॉज 6 में से 12 माइनस कर दो तो -6 हो जाएगा, -6 सीधे कर दो 80. So your cost of goods sold is 84,000 and the gross profit equals to sales is 1,20,000 and cost of goods sold is 84,000. So your gross profit will be the 0,006 and that is a 36,000. So your gross profit will be a 36,000. So please kindly note this question in your copy properly. Now we are moving to the
Next question which are related to the short answer type question. Question number 2 which are related to the this topic, that is in rent paid on 1st October 2009. Rent paid on 1st October 2009 for 1 year, for 1 year, rupees 2,400, as well as rent paid on 1st October 2010, rent paid on 1st October 2010 for 1 year, rupees 3,200. And the in question is rent shown in profit and loss account for the year ended 31st March 2010 would be. क्वेश्चन क्लियर होगा मुझे लगता है। कह रहा है आपने रेंट पे किया 2009 में एक साल के लिए 2400 रुपए और 2010 में 1 अक्टूबर को पे किया 3200 रुपए एक साल के लिए। सो इसका पेमेंट कब से कब तक होगा? वो होगा 1 अक्टूबर 2009 से 30 सितंबर 2010 तक। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये रेंट पे आपने क्या होगा 2010 में 30 सितंबर 2011 और आपको 31 मार्च 2010 तक का बताना है कि रेंट कितना पीएल अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड। रेंट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रेंट दिखाना है हमें 31 मार्च 2010 में, तो ये कब से कब तक का रेंट होगा? ये रेंट होगा 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक का। आपको 2009 अप्रैल 1 से 31 मार्च 2010, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये 2011 होना चाहिए। तो आपको अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 का रेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर आप पीरियड देखो तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 30 सितंबर 2000 रेंट का जो अगर 1 ईयर की बात करें तो आपने कितना पे किया है? 2400। सो उसको पीरियड को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेंट का चार्ज चेंज हो गया। 1 अप्रैल 2010 से 30 सितंबर 2010 तक का रेट अलग था और उसके बाद 1 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2010 तक का 11 तक का रेंट अलग था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने का रेंट अलग था और 6 महीने का रेंट अलग था। अलग क्यों था? क्योंकि आपने अलग अलग पे किया और अलग अमाउंट पे किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि रेंट पर मंथ सेम है। तो फर्स्ट ईयर का जो आपने रेंट पे किया है 2400 रुपए पे किया है, तो इस साल का अगर आप एनुअली रेंट निकालो, मंथली रेंट निकालो, तो कितना आएगा? क्या आएगा? 200 रुपीज मंथली रेंट। और इसका निकालो तो कितना आएगा? ये आएगा आपका ये आपका पॉइंट में आएगा। मुझे 3200 को 12 से डिवाइड करो तो मुझे लगता है ये पॉइंट में आना चाहिए। यस, 266 यानी 267 रुपीज अप्रोक्स। इसका मतलब जब आप पीएल अकाउंट में रेंट को शो करोगे तो जो 6 मंथ का रेंट है
वो किस हिसाब से लगेगा, 200 इंटू 6 यानी 1200 रुपीज लगेगा। ठीक। और बाकी के 6 महीने का जो रेंट है वो चेंज हो गया, वो हो गया 266 के हिसाब से आपका रेंट लगेगा 6 महीने का 1600 अप्रोक्स। So total rent will be debited in the profit and loss account. So rent debited to profit and loss account will be a 2800 and my answer is fully correct. Okay. So please note down this solution in a copy. Let's move to the next question. Next question is net profit before adjustment is 1,80,000. Outstanding salary 10,000. Prepaid insurance 13,000. And you have to calculate a profit after adjustment. So profit, next question है ये next question है, ये previous question था कि profit after adjustment क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट क्या होगा अगर इंफॉर्मेशन आपकी हो कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है आपका 1,80,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस है 13,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस तरह के क्वेश्चन तो और कम टाइम लेते हैं। अब आप खुद देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके एक्सपेंस को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, इसे हम रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड करते हैं तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके एक्सपेंस को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, सर इससे हमारा एक्सपेंस घट जाता है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी तो आपका प्रॉफिट इनका एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो ये आपकी प्रॉफिट को कम करेगा। उसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को रिड्यूस करता है तो आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट के हिसाब से देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि 1,80,000 में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस करना चाहिए और प्रीपेड इंश्योरेंस को प्लस करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉफिट को बढ़ाता है, एक्सपेंस को घटा देता है। सो 1,80,000 माइनस 10,000 प्लस 13,000. So your profit after adjustment will be a 1,83,000 and solution में भी यही आंसर गिवन है। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। So the next question which are related to the manager's commission, बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन दिया है। ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको यूटी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आए भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज रुपीज 21,000. If the manager is entitled 5% commission after charging such commission, और मैनेजर्स कमीशन जो गिवन है वो कह रहा है मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विल बी अ 5%. तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स कमीशन के दो फॉर्मूला होते हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन द प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू रेट
upon 100 plus rate of commission, and the profit is 21,000, rate is 500 plus 5. बिकॉज क्वेश्चन में दिया है मैनेजर्स कमीशन हमें कैसे निकालना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के बेसिस पे निकालना है. 21,000 इंटू 5 अपॉन 105. सॉल्व कर लो. 21,000 डिवाइडेड बाई 105 into 5, and your manager's commission after charging such commission will be a 1,000. अगर आप चाहो तो इन चीजों को चेक भी कर सकते हो कि अगर मैनेजर बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन मैनेज नेट प्रॉफिट कितनी है 21,000. 21,000 में से 1,000 माइनस करो तो कितना आएगा 20,000. और क्वेश्चन में कह रहा है ना 5% 20,000 का 5% निकाल लो 1,000 आएगा. क्योंकि ये जो 1,000 है ये एक ऐसी प्रॉफिट पे हम कमीशन प्रोवाइड करें जो आफ्टर चार्जिंग, बट हमारे पास आफ्टर चार्जिंग का प्रॉफिट नहीं दिया, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन which are related to this topic, that is in general manager gets gets 10% commission, 10% commission after charging such commission. जनरल मैनेजर को क्या मिलता है 10% कमीशन मिलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे. एंड द अदर इंफॉर्मेशन आर, if manager if gross profit is 70,000, gross profit 70,000 and जनरल एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस को नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए हम एक्सपेंस करते हैं, विल बी अ 12,000. और इस जनरल मैनेजर में एक्सक्लूडिंग मैनेजर्स कमीशन, जिसमें मैनेजर्स की कमीशन को इंक्लूड नहीं किया गया है. सो आप पहले क्या निकालोगे नेट प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे. तो नेट प्रॉफिट कितनी आएगी आपकी, ग्रॉस प्रॉफिट में से जनरल एक्सपेंस माइनस कर दोगे, हो जाएगा आपका 58,000. और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. सो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया है, मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. रेट इज 10 अपॉन 110. सॉल्व कर दो. 58,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 10 divided by 110, 5,272, 5272.72. सो अगर हम अप्रॉक्स देखें तो मैनेजर्स कमीशन कितना देंगे 5,273. सो आपने देखा कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कई तरह के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए. ओके, और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किससे, फाइनल अकाउंट टॉपिक्स. जो वीडियो है वो है ओके. एंड आई होप टुडे वी क्लियर्ड various important topic related to this chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए, जैसे कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, हम लोगों ने नेट सेल्स के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कॉस्ट कैलकुलेट किया, मैनेजर्स कमीशन पे डिस्कस किया, रेंट का एडजस्टमेंट किया, एज वेल एज वी डिस्कस लॉट्स ऑफ द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट related to the
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपके आने वाले यूटी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।